کیونکہ اس کو مزہ آتا ہے، آپ کو مزہ نہیں آتا حضرت، آپ اس لیے نہیں پڑھتے۔ جس دن آپ کو بھی مزہ آنا شروع ہو گیا تو پھر میں نے کہنا یار چلو ان پاس کرو، میں تقریر بھی کرنی ہے۔ جیسے تو ایک باری پڑھ کے تھی کہتے چل پائی ہوں دوجی باری توں پڑھ دوں کانوں آیا جیسی پڑھنا تھے۔ سب اب بکری بات ہے، ہم اگنور کر جاتے ہیں، لیکن یہ باتیں کرنے والی تھی، ہم نے نہیں کی کبھی۔ ہم کہتے ہیں پڑھو نہ پڑھو میں گھنٹہ اپنا لانا ہے تو تھی اپنے گھر تھی اپنے گھر، یہ ہمارا کام تھا ان کی تربیت کرنا، ہم نے کی کوئی نہیں۔ تو یہ صرف اس لیے نہیں پڑھتے ان کو مزہ نہیں آتا، جب مزہ آنا شروع ہو گیا پھر میں نے کہنا یار ہوں میں آیا کو میری بھی سن لو۔ اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ اس لیے پتر پہلے سوچن دی تار کٹو، مزہ لیا کرو۔ آپ نہ مسجد میں بیٹھ کے مسجد کا مزہ لیتے ہو، آپ نہ محفل میں بیٹھ کے محفل کا مزہ لیتے ہو، بلکہ ہم تو اتنے کور ہو چکے ہیں کہ ہم تو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے بھی خانہ کعبہ کا مزہ نہیں لیتے کوئی۔ ہم نے ادھر بھی پھوپھی چاچی کو کال میں لائی ہوتی ہے صاحب، اگر ہمیں وہاں بیٹھنے کا مزہ آئے تو کس کو پھوپھی یاد کس کو چاچی یاد ہے صاحب۔ اب مزے سے محروم کور ہیں ہم حضرت جی، نہ ریاض الجنہ کا مزہ لیتے ہیں، نہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہونے کا مزہ لیتے ہیں، بس ہم اور ہمارا فون۔ اس لیے پہلے سوچوں کی تار کاٹے پھر دل میاں کو چیک کریں سینے میں ہے کہ نہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں مکمل ہیں پھر یہ آنکھیں بند تو یہاں نیوی کر کے پڑھے ہیں ذرا ایک بار، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا حضرت، کسی کو مزہ آیا تھا تو اس نے لکھا تھا نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے۔ بھائی ایویں تو نہیں کسی نے لکھ ڈالا حضرت، یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ اور میں اس میٹھے سے محروم ہیں، یہ وکری بات ہے کہ امت میٹھے سے، اس لیے تو ایک بار پہ ہم تھک جاتے ہیں، جس دن یہ میٹھا ہمیں بھی میسر آ گیا پھر بات ایک یا دو پہ نہیں رکنی ہے حضرت، پھر کیا ہوگا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے، پھر بات لاکھوں کروڑوں پہ جائے گی حضرت۔ یہ اس لیے ایک یا دو بار ہماری بس ہو جاتی ہے کیونکہ میٹھا، اس لیے پتر کوشش کیا کرو خوب توجہ سے پڑھو، اتنی توجہ اور محبت سے پڑھو، پڑھے یہاں سے لیکن یہاں جائے، یہاں ہم نے پتر زمانہ گزار دیا، ہم یہاں سے یہاں تک کا سفر طے کر سکے، ہمیں تو اس سے نہیں پڑھنا آیا ابھی تک حضرت، اس سے ہم نے کیا پڑھنا ہے، اللہ پڑھتا یہ بھی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، لیکن دکھ ہے حضرت صاحب آپ نے کبھی پوچھا نہیں، اور میں نے بھی کبھی بتایا ہی نہیں کہ دل بھی پڑتا ہے حضرت، یہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ جب کبھی آپ کی میری ملاقات ہوئی آپ نے بس یہی کہا حضرت صاحب منڈے نے امتحان دیتے نے پاس کر دیو، کار کرائے تھے وہ دعا کریو اپنا لب جے، نوکری جے کچا وہاں پکا ہو جے، رینک وج جے، تنہا وج جے، منڈا ہو جے، ویزا لگ جے، اس کے علاوہ باپ کی اور میری کوئی بات نہیں ہوتی ہے حضرت۔ نہ کبھی آپ نے دل کے لیے پوچھا، نہ کبھی میں نے بتایا، نہ کبھی آپ نے کوئی روح کی بات چھیڑی، نہ کبھی میں نے کی، سب کچھ دنیا کی نظر ہو گیا حضرت۔ اب ہم دنیا کے لیے ملتے ہیں، دنیا کے لیے اٹھ جاتے ہیں حضرت، اب ہماری محفل میں ایسی کوئی باتیں نہیں ہوتی حضرت، ہم پکے دنیا دار ہیں حضرت، آپ بھی اور آپ کے ساتھ میں بھی۔ وہ لکھا ہے نا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کو بندہ آیا اور اس نے دنیا کی مذمت میں گفتگو کرنی شروع کر دی، دنیا مغضوب ہے، دنیا ملعون ہے، دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، یہ بھائی کو بھائی سے لڑاتی ہے، یہ بندے سے گناہ کرواتی ہے، کافی دیر لگا رہا۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھے دنیا سے واقعی پیار ہے۔ اس نے کہا سیدنا میں اتنی دیر سے دنیا کی مذمت میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ نے مجھے پہ دنیا کی محبت کا الزام دھر دیا۔ فرمایا صحیح کہا ہے میں نے، محبت بھی نہیں بڑی پکی محبت۔ اس نے کہا سیدہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے، اگر تجھے اس سے محبت نہ ہوتی تو بار بار اس کا نام نہ لیتا ہے، نام لینا تو ذات کر لے، کیا بہانے بہانے سے پھر اسی کا نام لیتے۔ بس تکلیف ہی ہے حضرت صاحب، دل کی باتیں چھڑی نہیں حضرت، باقی تو پتر دل تو پھر دل ہی ہے نا حضرت۔ میں بھی اس سے زیادہ کیا دل کے لیے کہوں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے کو۔ اب میں اس گھنٹے میں دو تین باتیں میں نے کرنی ہے، اب میں اگر دل کو چھیڑ بیٹھا تو پھر میں اس کو کلوز کیسے کروں گا حضرت۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے اللہ فرماتے بندے میں کہیں نہیں سما سکتا، اگر سما سکتا ہوں تو وہ بندہ مومن کا دل ہے، لیکن دل پہ کبھی بات ہوئی نہیں حضرت صاحب، ہم تو بس اسی میں پھنسے ہوئے ہیں حضرت صاحب۔ دل بڑے رنگ ہیں
हैं दिल के पुत्र। अगर कोई कारीगर मिले और वो फिर इस पर मेहनत करे तो फिर ये दिल का ही रंग है कि जिस्म गोजरे में और दिल मदीना पाक में है इसमें ये कमाल है। क्योंकि किसी ने लिखा था ना, कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाब। मैंने कहा दिल जिस्म गोजरे हुए लेकिन दिल नहीं। दिल या रियाजुल जन्ना शरीफ है, या बाबे जबरील होगा, या सुफ़ा शरीफ होगा, या कदमैन शरीफैन में होगा, या बाबू सलाम होगा, या सुनहरी जालियों के सामने होगा, या कहीं बाहर बैठा गुंबद खजरा को देख रहा होगा। कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ। दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता है, लेकिन तुझे पूछे ही नहीं करिए। और फिर जब ये और इस पे करम होता है, इसको और सफाई मिलती है, तो फिर वो भी वेला आता है कि हजरत ये फिर खुद ही मदीना पाक बन जाता है। जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा, जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा, मेरा दिल उन्हीं पे निसार है। और देखो आगे क्या कमाल है जी। जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा, मेरा दिल उन्हीं पे निसार है। मेरे कल्ब में है वो जलवागर कि मदीना जिनका दियार है। और ये कोई हज़रत साहब को खतीबाना जुमला नहीं है कि किसी ने जोश खिताबत में कह डाला था। ये मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाहि तआला का कलाम है, और वो ऐसी कच्ची बात कर सकते ही, उनको ये मुयस्सर थे रंग। जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा, मेरा दिल उन्हीं पे निसार है। मेरे कल्ब में है वो जलवागर कि मदीना जिनका दियार है। लेकिन पूछते कोई नहीं है, ना को बताता है। ये हुज़ूर उल शाह साहब के लिए भी लिखा है ना कि वो आपका कोई मोहल्लेदार, कोई गराई, वो उम्रा शरीफ पे गया या हज पे गया, तो उसने आके हजरत से कुछ अदा पूछे, तो हजरत ने तरबियत फरमाई होगी हजरत। तो वो जब वापस आया तो बातें शुरू होना शुरू हो गई। आपने फरमाया 10 फिर उथों आए हैं तो फिर की वेख्या। वो बेचारे ने मेरे हर की वेखड़ा, वो तो बखान गया। हम वेखने नहीं जाते पुत्र, हम तो विखाने जाते हैं। घर से निकलते हैं, निकलते हुए एयरपोर्ट जाते हुए, जनाब इमिग्रेशन कराते हुए, अब जनाब जहाज़ में जाते हुए, जहाज़ पे बैठते हुए, अब जहाज़ उड़ते हुए, अब जहाज़ आसमान पे पहुंचते हुए, अब जहाज़ नीचे जाते हुए, अब मैं उतरते हुए, अब मैं ये कराते हुए, अब जनाब मक्का शरीफ जाते हुए, अब होटल में जाते हुए, अब जनाब वो उम्रे के लिए जाते हुए, अब जनाब सीने हरम में जाते हुए। यार कोई एक अद्धा उमरा तो कर लो जो सिर्फ वो लिए हो, जिसमें जाते जूते कोई भी ना हो, तो वो चुप करके जाइए तो चुप करके वापस आ जाइए, या उन्होंने पता हो तो सानू पता हो। अजीब हजरत तमाशा लगा खड़ा है ऐसा। सीने हरम में जाओ हजरत, मासू नहीं मिलते उधर, आवाज़ें नहीं सुनाई देती। हर बंदे ने मोबाइल खोले है, किसी ने फुफो नूं काल मिलाई है तो किसी ने खाला नूं मिलाई। भाई जिदे अल्लाह जिदे घर आए वो ध्यान कर। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कोई बंदा आपके घर आए, दरवाजे पे दस्तक दे, आप उसको पूछे भाई किवें, ओके जी जनाब मिलना है, दिल बड़ा करता है पे मिलन, आप उसको अंदर ले आए। अब आप उसके पास बैठे हैं, वो आपके कभी हजरत वो किसी को काल मिला लेता है, कभी वो किसी को मिला लेता है। आकर के आपने कहना भाई मेरे को नहीं आया ना, हो सकता सानू भी आवाज आती हो बंदे मेरे को नहीं आया ना, मेरे को नहीं आया ना। हो सकता है हमें भी आवाज आती हो, लेकिन बकौले इकबाल क्या खबर तुझको कि है ये राज क्या दोस्त की आवाज क्या है। खुश्क मौजो खुश्क तारो खुश्क पोस्ट, तेनू तू तो इन्ना है, तेनू की आवाज हो सकता है हमें भी आती हो। वो बंदे आप मेरे घर आए हैं तो मेरे ना गल ही कोई नहीं, कभी किसी ने फोन मिला लेना है, कभी किसी ने फोन मिला लेना है, कभी किसी ने फोन मिला लेना है। अल्लाह का वास्ता निकलो पुत्र इन चीज़ों से, बड़ी तकलीफ होती है देख के। हमारे साथ भी इस तरह होता है अल्लाह बस, लेकिन क्या करें यार, अल्लाह बस हमें माफ़ी कर दे हजरत। तो वो बेचारे ने क्या बताना था हजरत, उसको समझ नहीं आई। तो वो कहता है हुज़ूर बुल्ले शाह को, हजरत मैं जब सीने हरम में गया ना मताफ में, तो वहाँ नूर ही नूर था। तो हुज़ूर बुल्ले शाह को पता सहने जो भी कोई नहीं है। फिर आपने फिल बदी लिखा, आपने फरमाया तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, साढ़े बुतखाने विच पिया हुजूर वसे। वाह भाई वाह, क्या सोहना दौर था यार। तेनू काबे विच पिया नूर दिसे,
साडे बुतखाने विच पिया हुजूर वसे, मैं को नेड़े तै को दूर वसे, तेरे अंदर बार पलीती है। मुल्ला छोड़ दे, चलो ये नहीं पढ़ना चाहिए आगे, ये इनके वाला है ही नहीं है। तो इसलिए पुत्र बड़े रंग हैं दिल के, लेकिन पूछता कोई नहीं है साहब। मेरे बड़े हजरत साहब ने कमो पेश हजरत 100 साल के करीब उम्र पाई, हो सकता उससे भी ज़्यादा हो, और हजरत ने कमो पेश 100 से आगे पीछे मसनद पे बैठे और सोनी ड्यूटी की। फजर पढ़ के बैठते थे, कंजुल ईमान शरीफ खुलता था, वो आयत पढ़ी जानी, तर्जमा पढ़ा जाना, और फिर हजरत साथ साथ ना उस हवाले से तरबियत फरमाया करते थे। कभी दरसे हदीस होना, तकरीबन ये सिलसिला चला हजरत जी। और अगर आपका सियालकोट में कोई जानने वाला हुआ तो आप उससे पूछ लीजिएगा कि हकीम अब्दुल्ला ही गुजरे हैं सियालकोट में। हजरत 11 बजे हजरत की मस्जिद में जगह नहीं मिलती थी, 11 बजे लोग आके बैठ जाएंगे, क्योंकि हजरत जब कलाम करते थे तो दिलों के तार छेड़ते थे। क्योंकि हजरत वो सिर्फ आलिम ही नहीं थे, वो मैं अक्सर अपने लिए दुख से कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ मौलवी सुलेमान तो इसमें फ़ाइल वाला आलिम तो बन गया, लेकिन इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वाला नहीं बन सका। जिस दिन हजरत असी मौलवी सुलेमान में इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वाला आलिम बने ना, फिर उस दिन 11वीं तो बाद मेरी मस्जिद की जगह कोई नहीं मिलती। अभी तो हम रोते हैं जी, लोग आते कोई नहीं यार, उन सारा कसूर लोगों का तेरे ना कड़चर मौलवी सुलेमान तू अपने आप ही वेख क्यों नहीं आते यार, तेरे कल मिठा होए तो आन लोग क्यों ना आना, जिथे मिठा होए उथे। लेकिन दुख है हजरत हम इसमें फ़ाइल वाले आलम ही रह गए। इन्नमा यख्शल्लाह, तो हजरत पे करम था अल्लाह का जी। और ये नहीं कि हजरत को बड़ी कुर्सी तोड़ तकरीर करते थे, अल्लाह मैं बड़ा मट्ठा बोलता हूँ, हजरत समझे इससे भी कहीं गुना मट्ठा बोलते थे, लेकिन एक एक बात धड़क दिल पे लगती थी हजरत, और फजूल भी नहीं बोलते थे, पूरा तोल के बोलते थे हजरत। एक बार सियालकोट में कोई बड़ा शख्स इंतकाल कर गया, उन्होंने बड़े तरले मिन्नतें की हजरत जनाजा पढ़ा दें, ठीक है। हजरत पहले तो नहीं माने, फिर चले गए, मुझे हुक्म फरमाया, मैं साथ था। वो जब हजरत खड़े हुए ना तो ज़ाहिर लोग आ रहे थे, तो वो इस्तदा की गई कि हजरत को एक गल सुना दे, चुप। फिर एक बंदे ने कहा हजरत लोग आ रहे हैं तो एक को बात सुना दें, फिर चुप। फिर तीसरी बार एक बंदे ने कहा हजरत कोई तरबियत कर दे, हजरत फिर चुप। हालांकि मैं तो मुरीद था ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगा यार, ना की होया, हमारा काम ही बात सुनाना है। 3 बार बंदे ने कहा तो हजरत सुना ही देते। जनाजा पढ़ाया, दुआ की, हम खान का वापस। वो शायद उन्होंने खुद ही कुछ इस तरह का किया कि जो अंदर चल रहा था बाहर आ गया। मैंने इसकी हुजूर आज आपने तकरीर नहीं की। मेरे सवाल का तो नहीं जवाब दिया, मुझे पूछा क्या होना था तकरीर से। मैंने कहा हजरत लोगों ने कुछ सीख लेना सी। तो पंजाबी बोलते थे, मुझे फरमान लगे भाई जी जेड़ी मैयत मोड़ियां ते आपे चुक के ले आए सन उहदे गुरु ते सिखिया कख नहीं है। जेड़ी मैयत मोड़े ते चुक के आपे ही ले आए सन उहदे गुरु ते सिखिया कख नहीं। मैं उन्होंने की सिखाना सी, जे सीखण वाले हुंदे ते जनाज़गा सिखाण वास्ते बहुत कुछ सी, जे सीखण वाले हुंदे ते इन्नियां कवरां सिखाण वास्ते बहुत कुछ सन। लफ्ज़ नहीं जाया करते थे हजरत, उनको पता होता था कि इधर है। तो 2009 में को कैफियत थी कि हजरत चुप कर गए, जुम्मा भी छोड़ दिया, पढ़ने जाते थे, लेकिन 9 भी चुप रहे, 10 भी चुप रहे, 11, 12, 13 में हजरत का विसाल हो गया। हजरत चुप तो कर गए, लेकिन मैंने कई बार हजरत की आंखों से मोती गिरते देखे, और रोया करते थे और फरमाया करते थे सानू 100 साल हो गए दुकान पाया, सानू 100 साल हो गए दुकान पाया, लेकिन जेड़ा सौदा लैके बैठे सा मंगण ही कोई नहीं आया। कभी किसी ने मंगी ही नहीं आके, जदू किते होए वही है साहब। ये शाह साहब इधर कसूर के करीब कोशिश होती है हजरत के वेला मिले तो मैं जाऊँ, ये नहीं कि मैं को रोज़ ही गया होता हूँ, साल में कोई एक अद्धा दाव लगता है। अल्लाह अक्सर अहबाब पूछते हैं कि जी केड़े शाहरी ने, मैं इधर जी रहन दो, क्यों मेरा भी बूहा बंद करवाना जिधर सारे ने टुके होना, काम की गल फिर कोई नहीं होनी, तो मैनू भी होना कहना चल भाई दफा हो तू ही है, तू एक ही नवा वक्ता पाए मेरी जान। तो वो मेरी कोशिश है कि मैं जाया करूँ। एक दिन मैं हजरत गया,
पता नहीं हज़रत ने कैमरे में देखा या किसी मुरीद ने बताया या हज़रत के पास कोई और भी रास्ता था, तो बाहर तशरीफ़ ले आए, सीने से लगाया, मत्था चूमिया तो रो पड़े। इतने पता नहीं कितने दर्द में सैयद था हज़रत, रो पड़े और मुझे कहने लगे मिसबाई साहब चंगा होया आ गए। अब इतना दर्द रोने में को डेढ़ कोथरू मेरा भी डिग ही पिया। खैर हज़रत आस्ताना मुबारक पे गए, बड़ा सोना लंगर खाया। मैं बेवकूफ़ का बेवकूफ़, मैंने फिर हज़रत का दर्द छेड़ दिया। मैंने कर्ज़ की मैं हुजूर रोए क्यों? वो फिर रो पड़े और फरमान लगे मिसबाई साहब अज एक बंदा आया आटे का पेड़ा लेके और मुझे कहता है शाह जी दम कर दो। मैंने पूछा भाई मसला क्या है, मुद्दा क्या है? दम तो मैं कर दूँ ना। अब बात थोड़ी बेशर्मी की है लेकिन क्या करें हज़रत। तो फरमाने लगे वो बंदा मुझे आगे से कहने लगा शाह जी इस वजह नाल आटा दम करा कर दो कि मेरी मझ नहीं मिलन रही ना। तो फिर रोए बड़ा और फरमान लगे मिसबाई साहब आस्थानों और खानकाहों पे क्या बुरा वेला आया जहाँ कभी लोग अल्लाह से मिलने के लिए आया करते थे, अब लोग वहाँ भैंसे मिलवाने आते हैं और ये नहीं चलता सारा। फरमाने लगी अब्बा जी ने ना नंबाया होंदा ते सारा कुछ रख के तो मैं भी कहना ही चल बुलिया उत्थे ही चलीए जिथे सारे इन्ने ना को साड़ी जात पछाने ना को सानू मन्नी। मैं उलमा कसीर तादाद में है, मैं बड़ा मोहतात होकर बोलूँगा। पुत्र भाभी पीरां नूं नहीं मनते तो की होना घर औलादा नहीं हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह के वलियों की दुआ से हो नहीं सकती या अल्लाह के वली फिर आप मुझ पर उंगली उठाओ अगर मैं ये अकीदा रखूँ। नहीं भाई, सुनता है अल्लाह अपने दोस्तों की, अल्लाह अपने दोस्तों की। लेकिन मैं एक आपसे पूछ रहा हूँ वो नहीं मनते थे सारे बेऔलाद ने या किसी घर मुंडा नहीं होया सुनियो खुदा दा वास्ता जे को थोड़ा जा अगे भी आ जाओ, अगे भी आ जाओ को थोड़ा जा अगे कोई भी गल पीरां नाल कर लो आके, कोई आखरत की गल कर लो, कोई रब रब दे रसूल की भी गल कर लो आके, कोई निकल आओ थोड़ा सा अगे। हज़रत साहब पढ़ वजीफे ते करवा के तवीज़ फिर भी मुल्क बदहाल। हज़रत साहब दुनिया का सबसे अमीर आदमी है बिल गेट्स हज़रत, और बिल गेट्स का शुमार किन लोगों में है जिनके लिए हम हर रकत में पढ़ते हैं क्या गैरिल मग़दूबि अलैहिम, मग़दूब यहूद हैं हज़रत, वलद्दालीन दालीन नसारा ईसाई हैं हज़रत, जिन्हां वास्ते असी हर रकत च पढ़ने हैं कि या अल्लाह सानू वो इन्ने रब नूं भैड़े लगते हैं। लेकिन दोए मैं अक्सर सोचता हूँ बैठ के, मैं कहता हूँ यार साई किन्ना अगे लंघे ईसा अलैहिस्सलाम दे मनण वाले, चलो मनण वाले ने नहीं मनण वाले कोई कला दा इशू है। यहूद किन्ना अगे लंघे इसहाक अलैहिस्सलाम दे मनण वाले, हज़रत दाऊद दे मनण वाले, हज़रत उज़ैर दे मनण वाले, हज़रत सुलेमान दे नाल ने हज़रत जी राम लक्ष्मण दे मनण वाले कित्थे टुर गए हज़रत। ये चाइना, ये हांगकॉन्ग, ये जापान, ये कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया, ठीक है जी, बुद्ध मत के मानने वाले। अब मुझे नहीं पता क्या हकीकत है, ये कोई नबी थे या वल्लाहु आलम क्या मामला, किन्ने किन्ने अगे लंघे लेकिन मुहम्मद पाक दे मनण वाले वावे पीछे रह गए। और पता पुत्र मुहम्मद पाक दे मनण वाले पीछे क्यों रह गए? क्योंकि इन्होंने मुहम्मद पाक नूं ते मन्निया लेकिन मुहम्मद पाक दी कोई नहीं मन्नी है। अगर इन्होंने मुहम्मद पाक दी मन्नी होंदी तो पुत्र कुरान में तो अल्लाह कह रहा है व अंतुमुल आलऊन, वो तुसी गालिब रहो। यहूदी थले, ईसाई थले, बुद्ध मत थले, राम लक्ष्मण दे मनण वाले थले, व अंतुमुल आलऊन, तुम गालिब रहो। लेकिन शर्त अगे की रखी सुन, फरमाया होना पहले तुहानू मोमिन बनना है, होना तुहानू पहले। इसलिए पुत्र अल्लाह का वास्ता अल्लाह वाले पासे आओ। मैं इधर तो चलो मौजू ही कुछ और है, मैं एक उर्स पे किसी ने बुलवाया तो हम थोड़ा पहुंच भी पहले गए, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार आओ जो साहब उर्स हैं उनके हवाले से कोई किताब शताब है तो दियो मैनू, चलो कोई कदी गल उन्होंने भी हो जाए, तो अगर नहीं है तो कोई वैसे को बाबे की कोई गल सुना लो, जो कोई समझ चाहिए तो मैं सुना देंगा। उन्होंने कहा जी किताब तो नहीं कोई, बाबे होरी बाबे सादे जे सन, लेकिन यह वे कि बाबे होरी जिथे बैत सन बाबा जी अपने पीर खाने में कोई सफ़े अव्वल के मुरीदीन में नहीं थे, बल्कि सफ़े आखिर के मुरीदीन में भी नहीं थे, सादे से मुरीद थे, खिदमत किया करते थे खानकाह में। कोई वो एक दिन पीरा ने कोई काम आख्या तो उन्होंने नाम ही साईं अल्लाह दिता, तो साईं अल्लाह दिते हुए काम बड़ा सोहना करके किया, पीरा नूं बड़ा पसंद आया। उन्हें पूछा भी किन्ने कीता है?
साहब ने कहा जी साईं अल्लाह दिते नूं तुसीं आखिया सी तो उन्हें कीता है। और मैं अच्छा इहनूं भेजो मेरे कमरे 'च। वो साईं अल्लाह दिते होरी आ गए। पीरां ने फरमाया बस तू सानूं खुश कीता है तो फिर अज मंग साडे कोल कुछ। साईं अल्लाह दिते तो भी वारी वारी जावां। साईं अल्लाह दिता साहब आगे सिर करते हैं पीर जी मैनू बस अल्लाह ही चाहिए। वाह साईं अल्लाह दित्या तेरा टेस्ट तेरा इंतखाब तेरी जायज़ कितने हूँ साईं अल्लाह दिते वर्गे। हाँ जी मैं बस उन्होंने मुझे नहीं बताया लेकिन मैं कहता हूँ एक बारी पीर खुश हुए उन्होंने। वाह भाई वाह क्या आला मुरीद है। एक बुजुर्ग हैं बड़े मारे। मैं एक दिन आपस में बैठे मैं हुजूर किन्ने मुरीद ने कहते हैं लाखों में। मैंने हुजूर मुरीद पूछे थे चुप कर गया अगू चुप कर गया। मुरीद तो कोई कोई होता है ना बाकी तो मुरीद बड़े होंगे लेकिन मुरीद क्योंकि मुरीद ला मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं पूछता। इंज दा मुरीद कितने पाइया हूँ तो इंज लगता है कि बस चलो चुप भली है दर साहब। वो फिर ना उन्होंने इम्तिहान किया। उन्होंने कहा साईं अल्लाह दित्या कोई और मंग को लवेरी को कट्टी को बच्ची को पैली को मुरब्बा को किला कोई मुंडा को बाहर का वीज़ा को ट्रैक्टर को ट्राली ये किहड़े पासे लगा पैन। उन्हें कहा नहीं पीर जी अल्लाह ही चाहिए। उन्हें फिर कहा साईं अल्लाह दित्या हुण मैं तेनों आखिरी वारी लगा पुछण हुण मैं गुणी पुछना कोई भी मंग। फिर को उन्हें अर्ज की हुजूर आखिरी वारी छड़ के 100 वारी छड़ के 10,000 वारी भी पूछोगे मैं हर वारी यही अर्ज करना मैनू अल्लाह चाहिए। मैंने उनसे कहा फिर साईं अल्लाह दे तेनों अल्लाह लभा कि नहीं लभा है। उन्हें कहा हुजूर मज़ार दसन नहीं दिया कि लभा कि नहीं लभा है कोई। मैं सब अक्सर सोचता हूँ किधर गए वो अल्लाह मांगने वाले मुरीद है। अब तो दास्तान नहीं बकरी अल्लाह सब तो ज्यादा हक अल्लाह ते अल्लाह के रसूल का कि उन्होंने मंगया जाए। पुत्र सब तो ज्यादा हक अल्लाह। और मैं कुरान सुनाऊंगा पुत्र वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन यरदूह। वो सब तो ज्यादा हक पुत्र अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कि उन्होंने राजी किया। बेटा कुरान में तो अल्लाह मोहब्बत करने का जो निसाब बता रहा है अल्लाह ये नहीं कह रहा कि बुढ़ी नाल मोहब्बत करनी है। उलमा बैठे हैं मेरे दाएं बाएं बल्कि अल्लाह की कह रहे हैं बुढ़ी नाल मोहब्बत अल्लाह नालों घट करनी है। अरे यही मजमून है कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम। कुरान है नहीं कह रहा कि बुढ़ी नाल दब के मोहब्बत करनी बल्कि की कह रहे हैं बुढ़ी नाल मोहब्बत अल्लाह ते अल्लाह के रसूल नालू घट करनी है घट करनी है। लेकिन ऐसे पुत्र घट नहीं आते आप ना कहें आपके चेहरे बता रहे हैं। आप ना कहें चेहरे बता रहे हैं कि वाह भाई हजरत साहब। क्योंकि पुत्र जिदन मोहब्बत उथे हो गई तो फिर भाई फिर बंदे नूं जिहदे नाल प्यार होए बंदा फिर उहदे लई तैयार हुंदा नहीं। बंदा फिर उहदे लई तैयार हुंदा है उहदे लई ड्रैसिंग करदा है उहदे लई मूँह शूँ बनांदा है। अजे तुहाडी ड्रैसिंग तुहाडा गैटअप ते तुहाडे मूँह दसदे ने पे कि अजे बच्चियां दी अम्मी नाल। लेकिन कुरान क्या कह रहा है कि ये नहीं कह रहा कि बीवी नाल वाहवाही करनी बल्कि क्या कहता है अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नालू घट करनी। पुत्र गल ही वक्री वक्री वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन यरदूह। बस अन युरदू अच्छा कल अन युरदू देखो मैं कई जगह यरदू अन युरदू ओदी फिर अपनी गलती थी नलायक दी। हाँ जी सबसे ज्यादा हक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कि उनको आप मोहब्बत करनी है बीवी ना लेकिन अल्लाह तआला दे रसूल की मोहब्बत गालिब रहे। जिहाद की मोहब्बत वो देते गालिब रहे। लेकिन पुत्र फिर मैं अब दुख से कहने लगा हूँ क्योंकि कुरान तो स्टेजों पे है कोई नहीं। स्टेजों पे है शेर व शायरी है इसीलिए तो कुरान नहीं ना क्योंकि पुत्र कुरान की डंडी नहीं ना लगनी कोई नहीं। इसलिए कुरान बड़ा दुख होता है जरा साहब देख के अपने स्टेजों के हालात। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी महफिलों में सबसे बेहतरीन महफिल वो है जिसमें हर चीज़ पे कुरान गालिब हो। लेकिन दुख है साड़ियाँ महफिलों च कुरान गालिब नहीं कुरान गायब
हज़रत साहब बंदों का कलाम पढ़ने के लिए 10-10 बंदे बुलाए जाते हैं अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए। हज़रत साहब व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, बहुत शान सोहना कलाम, लिखण वाला बड़ा सोहना। ਅਸੀਂ जिन्ने हाँ सारे रल जाइए तो लिखण वाले दे पैरों की धूड़ नूं पहुँच सकते वो सहाबी रसूल थे। अरे साहब जो मर्जी सैयदुना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, लेकिन एक गल तो मननी पेगी ना कि फिर भी व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, कलाम तो इंसान दा ही है बड़ी शानो, लेकिन कलाम तो मौला सल्ली वसल्लिम दायमन अबदा, बड़ा जबरदस्त ही कसीदा, लेकिन कलाम तो इंसान दा ही ना। हाँ जी, मुख चंद बदर शाशानी बड़ी शान है, लेकिन कलाम फिर भी वाह क्या जूदो करम ऐ शहे बतहा तेरा। बल्कि इत्थे मैं कहांगा कि सिर्फ कलाम नहीं बल्कि मेरे इमाम दा कलाम कलामा दा इमाम है हज़रत। लेकिन हज़रत गल इत्थे भी मननी पैनी है कि कलाम ते इंसान दा कलाम पढ़न लई बंदे 10 और रब दा कलाम पढ़न लई बंदा। और साहब हम स्टेजों पे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ जो एक भी इनको सुनना पड़ता है ये कैसे तंग होके सुनते हैं। इतने कुरान से दूर इन्हां दे जेबां च जिहड़े 100 ਦੇ नवे नोट होंदे ना वो भी इन्हां हर भुड़कदे होंदे ने कि किहड़े वेले तलावत मुक्के ते चल छैयां शुरू होए ते फिर असीं भी शुरू होईए। ये मर न जाण हज़रत कुरान पढ़ने नोट के 100 ਦਾ एक नोट भी दे छड़न। वो अंदर जिहड़े नोट होंदे ना भुड़कदे होंदे ने जी किहड़े वेले मुक्के जाए ते छैयां शुरू होए ते फिर उठ के ते असीं भी नाल शुरू। वो सब पैसे इन्होंने क्या देने, इनके मुंह से जुबान अल्लाह नहीं फुटती है कुरान पढ़ते हुए। इतनी दूर कुरान से हम, इसमें स्टेजों का बड़ा कसूर है। देखिए ना हज़रत साहब कितना बड़ा किबला जी जुल्म है। दसिया कि ये हुजूर गौसे पाक हर रात एक कुरान पढ़ते सन। दसिया है वे तो पढ़ियां सारी रात। दसिया कि गौसे पाक हर रात एक कुरान पढ़ते हैं। आप की कीता कुरान एक बार पढ़िया बस, बाकी सारी रात की चले है। अरे सब बड़ी बड़ी गालियाँ पड़ती हैं कमेंट्स में, फोनों पे भी लोग बड़ी बड़ी देते हैं जे किसी का चौक लईए तो। लेकिन सानू की टेंशन है जी। मैं बड़े दुख से कहूँगा हज़रत साहब साढ़े स्टेज देन दे वाले नाल फेल हुए ने। आज हमारी महफिलें होती हैं, खतीब साहब भी लेके जाते हैं, नकीब साहब भी लेके जाते हैं, नात खां भी लेके जाता है, साउंड वाला भी लेके जाता है, पखी चलाने वाला भी लेके जाता है, खुशबू वाला भी लेके जाता है। नहीं लेके जाते तो ये बेचारे कुछ नहीं लेके जाते, क्योंकि सारी रात यही चलता है। मैं उत्थे गई फिर मैं वापस आई, फिर मैं गई, पहली बारी मोटरसाइकिल ते गई, दूजी बारी कार ते गई, कार ते मज़ा नहीं आया, फिर मैं लैंड क्रूजर ते गई। यही चलता, क्या चलता। देखे ना साहब दुख नहीं को समझता किसी अल्लाह मुझे क्या लोड़ है साहब, मैं भी इन्होंने रल के चंगे नोटू छापां ते घर लैके जावां राती, सानू की तकलीफ ही है ना। हज़रत साहब 77 साल बाद मेरा स्टेज है ये भी आई कहन है दिल बेचैन नूं चैन दी लोड़। 77 साल लंघे स्टेजां नूं नहीं पता लगा कि चैन किहदे विच है। हज़रत साहब 77 साल बाद भी असीं यही पुछण डे मैनू मीम ते ऐन दी लोड़ नहीं। तैनूं मीम ते ऐन बाजार च लभणे ने, तैनूं मीम ते ऐन की उत्थे स्टेडियम च लभणे ने, तैनूं मीम ते ऐन की फेसबुक च लभणे ने। पुत्तर मीम ते ऐन ना मिलन दा शौक ही ते फजर तो पहले उठ के आया। मैं पुत्र जिसने पढ़ा जिसने लिखा मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं, भाई मैं अपना दुख रहूँगा। 77 साल बाद भी सानू ये तक कोई नहीं पता लगा। मैं बताता हूँ भी किसी को मीम और ऐन को मिलने का शौक है, पता करो जी गोजरे में यतीम बच्ची केड़ी है, कोई केड़ी धी डीकदी पई है जी। सिर्फ है सतूं कि कोई आए मेरे सिर ते हथ रखे, कोई थोड़ा जिहा मेरा जेज कर दे, कोई थोड़ा जिहा जंग की रोटी चुक ले, कोई थोड़ा जिहा मैनू जोड़े दे दे, मैं अपने घर जावां। जाओ पता करो, लेकिन कैमरा ना लवाइयो कोई भी, ते ना अखबार च दवाइयो। अलिफ नूं पता लगे, मीम नूं पता लगे, ते ऐन नूं पता लगे, ते कुड़ी नूं पता लगे, ते बते नूं पता होए। मैं पुत्र कैमरे दे सामने कह के चला जी, उधरू धी अपने घर जाएगी ते उधरू फिर तेनू मीम ते ऐन मिल पैणगे। हैं चस्के लगाते चस्के लगाते हो यार, चस्के लगाते हो यार, ना को सिर ना को गल दा पैर, चस्के लगाते हैं। 77 सालों बाद भी यही बातें हो रही हैं।
स्टेजों ने डिलीवर नहीं किया। हज़रत साहब दसिया है कि सारी रात कुरान पढ़ते सन, अब भी सारी रात इन्होंने नातां सुनाइयां तो बेचारे घर टुर गए हज़रत साहब। और असी पिछे पिछे बताया क्या वैसे करनी। हुजूर ने जुब्बा भेजा, हज़रत उमर ते अली पाक ने फरमाया ताड़ी मुलाकात होएगी उन्होंने, ए निशानी है, हाथ ते दाग होएगा बरस का, जुब्बा दईओ तो मेरी उम्मत वास्ते दुआ करवाइयो है। और उनके लिए पुत्र है ही लिखा है, नात पढ़ते है सन लेकिन सारी रात साढ़े घर ने पढ़ते सन, सारी रात की करते सन। लिखा है हज़रत उवैस पाक जब अपने हुजरे में आते तो अपने आप को मुखातिब करके कहते, उवैस अज फरिश्तियाँ वाली इबादत करनी और आज क़याम दी रात है, सारी रात क़याम करते। फिर अगली रात आते कहते उवैस फरिश्तियाँ वाली इबादत करनी और आज रुकू दी रात है, सारी रात रुकू। फिर आते कहते उवैस अज फरिश्तियाँ वाली इबादत करनी तो अज सजदी दी रात, सारी रात सजदा। दसे है लेकिन कीता की सारी रात, ना इशा न फजर। इसलिए सब हज़रत साहब लेके जाते हैं। मैं तो सब बड़े दुख से कहने लगा हूँ, स्टेज है ना इस्लाम का स्टेज है सब। इस स्टेज ने हज़रत जी खतीब भी मीर कर चढ़े, इस स्टेज ने बरकत ने नबी उन्होंने ना है, इस स्टेज ने खतीब भी मीर कर चढ़े, इस स्टेज ने नकीब भी मीर कर चढ़े, इस स्टेज ने नात खां भी मीर कर चढ़े। लेकिन इस्लाम गरीब हो गया। इस्लाम कहो नहीं, इस्लाम गरीब है, गरीब है। इन्नल इस्लाम बदा गरीबा व सयऊद गरीबा। गरीब हो गया, असी अमीर हो गए लेकिन इस्लाम गरीब है। इस्लाम कोई मन्ने कोई ना मन्ने लेकिन इस्लाम गरीब। ये मैं 2024 में बैठा हूँ, मियाँ मोहम्मद बख्श ने 100 साल पहले कहा था। हज़रत साहब पीटीवी भी नहीं था तब तो, ये फेसबुक, ये टिकटॉक, ये गंद, ये गलाजत, पीटीवी भी नहीं था। लेकिन उस दौर में भी मियाँ मोहम्मद बख्श ने रो के कहा था, ने कहा था दीन नबी दा आंग यतीमा दर दर तके खाए। धक्के मारने तुम विआह तो उनको नहीं बुलाते सी, खुसरे बुलावांगे, बैंड वाले बुलावांगे, ढोल वाले बुलावांगे, कैमरे वाले बुलावांगे, लेकिन इस्लाम नूं बुलाते कोई भी नहीं बुलाते। अपने घर नहीं बुलाते, अपने कारोबार च नहीं बुलाते, अपने दिल च उन्होंने कोई नहीं बुलाते। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे, कित्थों लियावां उमर बहादुर जड़ैनू सीने लावे। असी अमीर हो गए लेकिन दीन गरीब हो गया। मैं हजरत और क्या इसकी गुर्बत ही सुना। सब मीर हो गए लेकिन दीन, पीर मीर हो गए, खतीब मीर हो गए, नकीब मीर हो गए, नातखा मीर हो, दीन गरीब हो गया। दीन गरीब हो गया ऐसा। और ना मैनू ये गरीब होने का दुख, ना जैद नूं ना बकर नूं हजरत। लेकिन साहब अल्फाज का जखीरा मेरे को बड़ा थोड़ा है। और फिर जो गल आए मुस्तफा पाक दी तो फिर तो लफज यूज करते हैं, चूज भी डर लगता है। पता नहीं हजरत कल्बे मुस्तफा इस वाले कितनी तकलीफ जो होएगा ऐसा, क्योंकि दीन गरीब दीन। लेकिन हजरत कितना प्यार है। काफर चाचे कल आए जनाबे अबू ताले असी थोड़ा लिहाज करने हैं, मोहम्मद नूं मोड़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भेज छड़िया, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले, फरमाया भतीजे मैं बुढ़ा हो गया और मेरे को नहीं डके जाते हैं, तो थोड़ी देर लई इस्लाम का सिलसिला तबलीग का सब खतीबा ना जुमला नहीं, सादिक व अमीन रसूल की जुबान चो गल निकलन लगी। फरमाया चाचा जे मेरे सज्जे हाथ ते सूरज रख देन ते खब्बे ते चंद रख देन, मैं दीन दी तबलीग फिर भी नहीं छड़नी। मैं मेरे साथ दुख ना कहन लगा वा, सारी रात छैयां छैयां चलता है दीन साडे स्टेजां ते। ये बेचारे कख नहीं लैके जाते। मैं अगले लैके जाते मैं दसो की लैके जाते ने। हजरत साहब 77 साल लंघ गए, असी सड़क ते रखे कूलर तू उहदे उत्ते 15 रुपए वाले गिलास तू संगली नहीं लवा सके, क्योंकि दीन होता किदों है। ऐसा
ਨਕੀਬ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਥ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਕੀਬਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰਾ 8-8 ਸਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮਦਰਸੇ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਹਿਰ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੰਡੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੰਡੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੰਡੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਰੋਏ, ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਧੋਤੇ ਹਜ਼ਰਤ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਗੈਰ ਇਸਤਰੀਓਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਲੜ ਲਈ ਬੜਾ। 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਵਾਂ। ਨਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤੀ ਘਰੋਂ ਨਸ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਘਰੋਂ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਪਿਓ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਸ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਸੀ, ਮਹਿਫੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਵਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ। हज़रत बड़े खुश हुए। आपने फिर ताहिर तबस्सुम साहब के नाम रुका लिखा हज़रत कि इस काके नूं दाखला दवो जी, कालज छड़ के आया हज़रत। ठीक है जी। नकीब हज़रत साहब ना कोई कोरस, ना कोई डंडे, ना कोई गल्ला। ठीक है, चलो एक सिलसिला चल पिया। मैं कहना यार कम अज़ कम ऐना ही करो, रोज़ की एक आयत याद कर लो, एक हदीस पाक याद कर लो, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਯਾਦ ਕਰ। 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਓ, 90 ਆਯਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਯਾਦ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਯਾਰ ਚਲੋ 90 ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, 10 ਹੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਚੜਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ हैं, फरमाया ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ तो मुख्तलिफ तरीक़े नाल लाने हैं। लोहे नूं लगदा है तो दिलां नूं लग जाए तो किवें लाना है? फरमाया कुरान पढ़ पढ़ के लाना है, ऐसा वैने लाना है। शेरां नाल रंग लथना ये अल्लाह दे कलाम च ताकत है, अल्लाह दा कलाम है ही कोई नहीं। मैं हज़रत उस दिन मुझे किसी दोस्त ने क्लिप भेजा और स्पेशल उसने मुझे कहा हज़रत देखिए ज़रूर क्लिप। चलो तुम देखोगे कोई गल भी अगे हो जाएगी ऐसा वाले। हज़रत साहब एक फ़लस्तीनी बच्ची का क्लिप था, ठीक है जी। वो अपने घर में बैठे थे, सारे मिज़ाइल फायर हुआ ड्रोन से हज़रत, और वो सारा घर ज़मीन बोस हो गया। टेक्नोलॉजी बड़ी है जी, एडा एडा उड़ा बंब भी हज़रत पूरा गोजरा उड़ा हड़े पड़ के। अल्लाह मनो माफ़ करे, अल्लाह गोजरे की हिफाजत करे, अल्लाह पाक। वैसे मैंने कहा है टेक्नोलॉजी जी, असी तो सब की कीता, कुकड़ी तो लड़ाए ने, असी घोड़े दौड़ाए ने, असी हज़रत ढगे दौड़ाए ने, अज भी दौड़ान डे ने। वो अल-बैरूनी की हज़रत लाइब्रेरी, वो गोजर खां के पास है, जाके जाओ जाके वेखो सी की उहदे नाल कीता है साहब। हमने क्या किया? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हैं जी, कोई भी नहीं है। वो हज़रत साहब मुहब्बत की यादगार, वो ताजमहल, हैं जी, रो उन्होंने बह के वो मनु साजिया को लैबार्टरी बनाई होंगी, तो कोई लाइब्रेरी बनांदा, कोई यूनिवर्सिटी बनांदा वड्डी जी, हैं जी। हज़रत साहब दुख होता है कि हमारे बच्चे उनके पास पढ़ने जाते हैं। वो कुरान तेरे कोल, अली तेरे कोल, तू हूँ अकल पढ़े चल रहा है। अलग हो रहे तेरे कोल आनो आके कहन भाई कुरान तेरे कोल, अली तेरे कोल, सानू पढ़ा। लेकिन पता क्यों जाने हैं? कुरान बारी विच ते अली सिर्फ जिस दिन कुरान इत्थे ते अली इत्थे, फिर असी नहीं जाना, फिर आना होना नहीं। तो वो हज़रत बच्ची थी जी, वो ज़मीन बोस हो गया। अपनी मदद आप के तहत फ़लस्तीनियों ने वो सारा मलबा उठाया, और जब मलबा उठा लिया, ज़ाहिर शादी हो चुकी थी सारी, अम्मी अब्बू भाई बहन सब। अल्लाह की करनी जी, वो बच्ची बच गई, अल्लाह पाक की ज़ात ने उन्होंने। अब वो क्लिप है जी, वो सामने अम्मी अब्बू भाई बहन सफ़ेद लिबास पहने, बस मुंतज़िर हैं कि जी जनाजा और हम जन्नत। बच्ची बैठी है जी, रो वो रही है, लेकिन क्या कर रही है? कुरान पढ़ रही है। समझ ना आए कि रोआ के हज़रत खुश हों। 6-7 साल की बच्ची कुरान। और ऐसा फिर दूसरी गल हैरानगी इस बात की, किबला जी बच्ची नूं इन्ना भी पता सी कि इस मौके ते कुरान कित्थों पढ़ना है, कित्थों पढ़ना है। साढ़े बाबे नूं नहीं पता कि कुरान इस वे। एक महफिल पे गया मैंने, वो हदीस पाक का मफहूम बयान किया। महबूब फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जिन्होंने सब तो हल्का अज़ाब होया, वो पैर चग दी जुत्ती पाई, सामने बैठे कहते हैं सुबहान अल्लाह। मैं ताड़ी सुबहान अल्लाह, तुझी सुबहान अल्लाह, पता ही नहीं है।
इत्थे सुभान अल्लाह नहीं कहना, इत्थे की कहना है? अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन क्योंकि हमारे स्टेजों पर ऐसी बातें कोई होती कोई नहीं है। हमने तो स्टेजों पे हजरत जी बातें ये छेड़ी हुई हैं, मैनू रोज़ हशर दा डरना, गल हुई ना दसा क्या 2024 वालों का ईमान जी, को डर ही कोई नहीं है। सिद्दीक़ अकबर डरे, उमर फारूक डरे, उस्मान डरे, अली डरे, तलहा डरे, ज़ुबैर डरे, अम्मा आयशा डरे, अम्मा हफ्सा पाक डरे। 2024 वाले स्टेज वाले की कहते हैं जी, मैनू रोज़ हशर दा दिल, गल हुई ना। अल्लाह कुरान में अल्लाह डराए, मालिकी यौमिद्दीन, कुरान में अल्लाह डराए, आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में शामिल हुए, इमाम साहब ने दर्जी शुरू कर दी, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ाला। हज़रत उमर की एक चीख बुलंद हुई और हज़रत उमर ज़मीन में 2024 वाले कहते हैं सानू डर ही कदी, बल्कि उल्टा कहते हैं जहन्नम साढ़े को डरदी है। की कहते हैं, मुझे देख के आ जाएगा जहन्नम को भी पसीना। और तौबा तौबा, 2026 लंघ गए, हज़रत सहाबा पिछे, औलिया पिछे, सब नूं पिछे छड्ड गए। 2026 ते 2026 दे नाथ खां वो अगे ही किते लंघ गए। हज़रत साहब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम दी मुबारक दाढ़ी विच हज़रत जी सफेदी आई, ठीक है जी, अला मासूम, बल्कि इमाम ने मासूम जिन्ने भी ने दाढ़ी च सफेदी। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की थी, सोने महबूब है, फरमाया सूरह हूद ने मैनू बुढ़िया कर छड़िया। और भी आयात, चलो मैं एक सूरह हूद ने मैनू ते 2024 वाले सारे पिछे चढ़ गए। कहते नहीं सानू जन्नम भी सानू वेख के पसीना आंदा है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर दे जी। इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा के लिए लिखा है, आपका बेली मिलने आया तो हज़रत दा वेड़ा गिला सी, और बसरा में कोई ऐसा माहौल नहीं कि एडा खुला ही पानी हो कि बंदे ने वेड़े तरौंके होए। हज़रत उन्हें आपके खादिम नूं पूछे, भाई वेड़ा किवें गिला है? उन्हें कही, सवेरे मैं तंदूर ताया तो जो मैं लकड़ियां पा के अग लाई ना, तेन पता शुरू च अग बाहर आती है, तो अग के शोले बाहर इमाम तशरीफ लै खलो के वेखन लग पे, और फिर आपका जड़ा ख्याल है जहन्नम की अग अल टुर गया, और इन्ना रोए कि आपके अथू आना, आपका वेड़ा गिला हो गया। साहब केड़ा केड़ा, मैं बस इतना ही कहूँगा, दिल के फफोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। वो अब बच्ची जी कुरान तीसरी हजरत उसके चेहरे पे आने वाले रंग बता रहे हैं कि इसको इतना भी पता है कि इस वक्त अल्लाह का कलाम क्या क्या। मैं बस ख़त्म करने लगा, पढ़ती क्या है जी, और भी लहजा जी, मैं उस दर्द को ना खुद पहुंच सकता हूँ ना मैं आपको लेके जा सकता हूँ, लेकिन वो क्या पढ़ती है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। इत्थे और रंग सी, लेकिन तो अगे आई तो थोड़ी जी चेहरे थे ना खुशी, क्योंकि आगे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। फिर आगे पढ़ दिया हज़रत, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल्जूइ वनक़्सिम मिनल अम्वाल वल्अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हज़रत साहब उस 7 साल की कुड़ी नूं ते पता लग गया कि हुण की पढ़ना है। 77 साल हो गए साढ़े स्टेजां नूं पता लगा, हसबे मामूल रबीउल अव्वल शरीफ शुरू होने लगा, असी पिछले साल की तरह फिर ऐतकी आई पढ़ना है। लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोने फलस्तीन है साहब,
हसा वेखा नहीं जाता। इत्थे फौत होए एक जिहड़ा फौत होया है तो दबण वाले किन्ने हुंदे ने नाल 300 100 200 फलस्तीन जी की है जिहड़े फौत होए ने कई हज़ार ते दबण वाले किन्ने ने या एक ते या दो ने। एक जिहड़ा क्रेन ते बैठा है तो दूजा जिहड़ा उहनूं दसदा पिया। हज़रत एक बार च चुकदा है तो जिन्ने हज़रत जी चुके जाते हैं तो की करता है उन्होंने इजतमाही कवर विच पाकिस्तान हज़रत जी कित्थे खड़ा है विक गया सारा कुछ, सड़कां मोटरवे इदारे तुसी मैं सब विक गए थे। लेकिन साढ़े स्टेज अजे भी यही पढ़ते हैं लगियां ने मौजा। हालात इतने खराब हैं, भरा ने बिल की वजह तो भरा का गला वड़ चढ़िया। हालात इन्ने खराब ने, बिल देन दे पैसे नहीं सन, धार जिन्हां को लिया सी पैसे नहीं हाँ, प्यो सन टबरे नहर च खुद गया। सिर्फ 10,000 बंदे नूं बिल आया, देन दे पैसे नहीं हाँ, लैन गड्डी सामने अच बिल पढ़ के लेट गया। लेकिन साडियां स्टेजां नूं कोई फर्क है ना शावां नाल। असीं हुण भी उही पढ़ रहे हैं लगियां ने मौजा लखड़िया। हाँ वैसे मैं कहना बई सुलेमान तू पढ़ सकना, तेरियां ते लगियां ही ने, तेरियां वो तो सही पढ़ते हैं, उन्होंने तो लगियां ने, बाकी भावें किसी दी लगियां ने नहीं ने, बाकी भावें मर जान रुड़ जान सारे। लगियां ने मौजा होने लाई। मैं कहता हूँ जब ये हम करते हैं तो कल्बे मुस्तफ़ा पे क्या की करन दे देने। अल्लाह साहब केड़ियां मौजा। हज़रत साहब मैं बस एंड कर लगा वहाँ। हज़रत साहब एहतसाब वाली उम्मत सी, तलवार वाली उम्मत सी हज़रत। लेकिन साढ़े यहाँ स्टेजा ने बना केड़ी छड़ी लंगर वाली। और कोई दिन आए उम्मत सिर्फ लंगर खाती है हज़रत, और उम्मत उस तो अलावा करती कुछ। ये पुत्र 10 मुहर्रम गुजरा, बताओ लंगर खाने के अलावा कोई काम किया था? कोई प्रोग्राम बनाया हो? एक यजीद अंदर बैठा है जिन्हों सूफी कहते ने कोई एदे नाल लड़न का प्रोग्राम, बाहर यजीद ढेर ढेर फिरन डे ने, कौन नाल लड़न का प्रोग्राम? कोई भी नहीं। रबीउल अव्वल शरीफ आने लगा है, फिर लंगर ही होना है, तैयारियां शुरू हो गई हैं लंगर की। अल्लाह पुत्र असी केड़ी उम्मत सा? तलवार, 2 तलवारां, एक जड़ी अपने ते चलानी है, दूजी पिछे रखनी है। तो फिर जो अपने ते चला लेंगा तो फिर दूजी कढ़नी है, क्योंकि जो पहली तो अपने ने चलाई तो फिर दूजी काम आनी नहीं आनी। लेकिन असी केड़ी उम्मत हाँ? मैं हदीस सुनाऊंगा जी, मैं को अपने को गल करा तो मैं पूछियो। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने अर्ज़ की, अम्मा पाक अल्लाह के पाक रसूल के पाक घर की को पाक सी बात सुनाई। मफहूम है हदीस पाक, पाक मैंने अपनी तरफ से बोला। फरमाया सुन फिर अल्लाह दे पाक रसूल दे पाक घर दी पाक गल। फरमाया उस पाक घर दा ए हाल सी, 3-3 महीने लंघदे सन लेकिन चुल्हा बलदा। हज़रत साहब चुल्हा तो मैंने बड़ी बात कर दी है। महबूब पाक के फ़ख्र इख्तियारी का ये आलम था, दीवा बालन दे पैसे नहीं। आयशा पाक फरमाती है मेरी आंख खुली, मैंने महबूब को पहलू में नहीं पाया, मैं घबरा गई, मेरे महबूब किधर चले गए? फरमाती जब हाथ से ऐसे ऐसे देखना शुरू किया तो क्या देखती हूँ, मेरा हाथ महबूब के कदम मुबारक को लगा, मेरे महबूब अल्लाह की बारगाह में खड़े थे। दीवा बालन दे पैसे भी नहीं सुनते यार, ये मेरे महबूब के फ़ख्र इख्तियारी का आलम। दीवा नहीं सी बलदा हुंदा हज़रत साहब। लंगर वाली गल की तू आ गई, 3-3 महीने चुल्हा बलिया। लेकिन उसी पाक घर के लिए अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं, उसी पाक घर के लिए लिखा है जिस घर में 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलिया। लिखा जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल मुबारक हुआ तो उसी पाक घर में आपकी अपनी जाती 12 तलवारें पड़ी हुई थी। 3 महीने लंगर, लेकिन तलवारां किनिया? 12। जी फिर केड़ी उम्मत होई सी? लंगर वाली के तलवारां, लेकिन बना केड़ी चड्डी। इसीलिए तो 2 अरब मुसलमान हासी, लेकिन क्यों? इसीलिए तो जी आखिरी बात पे बात खत्म। ये दौरुल फितन है, इसमें फितने रोज नवा फितना, और हम बड़ी तेजी से जा रहे हैं हजरत किसकी तरफ? क़यामत की तरफ। कुछ अलामात सुगरा और कुछ अलामात सुगरा जो पूरी हो रही हैं और बस पूरी होने को है। फिर बारी आएगी हजरत जी अलामात
اور علامت کبریٰ میں سب سے پہلی علامت امام مہدی کا ظہور. ٹھیک ہے. ویسے تو کیونکہ ہم نے ہی آپ کو یہ سارا کچھ دیا ہوا ہے، ہوتا ہے جو جوش خطابت میں ہوتے ہیں ہم، تو پھر ہم سامنے بیٹھے اسے پوچھتے ہیں بھائی تاڑے جو حسینی کیڑا کیڑا ہاتھ کھلارو، سارے پھر تنوں پتہ ہاتھ کھلار چھڑ دیں. میں خود سے اس پہ کوئی کلام نہیں کروں گا، بس میں اتنا کہوں گا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام مہدی پاک کا ظہور ہوگا تو 2 ارب مسلمانوں میں سے صرف 12,000 آپ کی بیعت کریں گے. کتنے جی؟ 12. اور پتہ ہے بزرگوں نے لکھا ہے 2 ارب 12,000 کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر تے ہونی نا. امام مہدی نے یہ تو نہیں اعلان فرمانا کہ جی بساں کروائی دیاں نے تو پہلا سلام داتا صاحب، تے دوجا سلام بابا بلے شاہ صاحب، تیجا سلام پاک پتن شریف، چوتھا سلام حضرت جی اگے جا کے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، پھر حضرت شاہ رکن عالم، پھر اس تو بعد حضرت جی چلیں گے کلندر پاک، پھر چلیں گے سخی سرور، اتوں ذرا پینڈا لمحہ ہے، پھر سیدھا اسلام آباد گولڑا شریف، پھر امام بری شریف، تے آخری سلام کرنا ہے میاں محمد بخش صاحب. پھر تسی اپنے کار تے اسی بلکہ کس پہ بیعت ہونی ہے، یا مارنے پہ، یا تیسرا آپشن اس میں ہونا. لکھا ہے پھر کتنے بیعت کریں گے، صرف، کیونکہ ادھر تو پتر ہماری فلیکسوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام، لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا. تلواراں والی امت کیڑی امت بن گئی لنگر. اور پتر جی میں حضرت صاحب پچھلی بار یو کے گیا تو میں نے ترکی کا سٹے لیا، 3 دن میں استنبول میں رکا، بس شوق سی توپ کاپی اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. باقی میں کتے بھی نہیں گیا، ادھر بھی مزہ لیا تے ادھر ہی مزہ لیا. ادھر حضرت جڑی میں توپ کاپی آخری زیارت کی تھی نا، مجھے نہیں پتا آپ جائیں گے، شروع کدھر سے کرتے ہیں آپ، اسی صحابہ علیہم الرضوان دیاں تلواراں. بڑا ہی مزہ آیا حضرت. پہلے میں نے نکالا موبائل نا، میں اس میں لگا تصویر کھینچنے، دل نہیں منیا. میں یار گیلری وچ بچیاں دی تصویراں نے، بچیاں دی امی دی بھی ہیں تو یار ایڈیاں نہیں دل منیا. پھر ایس کیمرے کھینچن دی کوشش کی ہے، کیمرہ میرا ہی خراب ہے، صحیح کھینچی گئی، اس لیے مجھے کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. لیکن حضرت جہاں تک مجھے یاد ہے جناب سیدنا جعفر طیار کی تلوار یہ موتا میں شہید ہوئے تھے. اب دیکھیں نا حضرت، پھر وہ گل پھر نواں لگا میں رونا ہی کروں. ساڑھے اسٹیجاں دے ویکھو، اگر حضرت میں ان سامنے بیٹھے بچوں سے پوچھوں نا بھائی نبی علیہ السلام دے زمانہ مبارک دے جڑے شعراء نے تے نام دسو، انہوں نے پہلا بھی حضرت حسان ہی دسنا ہے تے آخری بھی حضرت علی سید الشعراء عبداللہ بن رواحہ. لیکن انہوں دا نام کیوں نہیں بلا؟ کیونکہ وہ صرف ناد خان ہی تھا، نال تلوارہ لے نہیں تھا، اس لیے انہوں دا نام لیندہ. کیونکہ پھر بتانا پڑے گا کہ ناد خان تلوار بھی چک سکتا ہے، ناد خان میدان جنگ بھی. اس لیے حضرت صاحب ان کا بتایا ہی نہیں بچوں کو کہ عبداللہ بن رواحہ بھی تھے درباری نعت گو شاعر، بلکہ سید وہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ، پھر جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ، جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، پھر میرے مولا مشکل کشا کی تلوار حضرت ہے. اور پتر لکھا ہے تاریخ میں حضرت علی پاک اتنے بڑے جنگجو تھے، 40,000 کافران دیاں گردناں آپ نے. اور بس جی اینڈ پھر سب آخری تلوار جدا مزہ آج تک لینا وہ کی سی؟ حضرت امیر حمزہ دی تلوار. اور پتر کتابوں میں لکھا ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن تھا 35 کلو، 35 kg، 35 کلو آپ کی تلوار کا وزن. اور پھر دوسرا لکھا ہے آپ ایک تلوار سے نہیں، آپ اس لیے حضرت جی بس دعا فرماؤ ٹھیک ہوگا. اس لیے حضرت دعا کرو ساڑھے سٹیجاں تے سنجیدگی آئے، اور جڑے بیچارے آندے نے ایک ہو جائے لے کے جا.
पढ़ो पुत्र सा, लेकिन देखो कि यह कुछ लैके जान है। हजरत ने मदरसे के लिए कहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा पुत्र अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, और स्पैशल हजरत जिहड़े खांदे पींदे लोग हो ना वो बनाओ। ऐसा सौदा सस्ता जी हजरत, शुक्र करो ना कि गले तो छुरी फेरन वालों जे कह चढ़िया। आलिम बनाओ अपने बच्चों को, अपनिया बच्चियां को आलिमा बनाओ। और बड़ी जरूरत है इस वेले काम की। जरा सी नम हो मट्टी बड़ी जरखेज है। देखो ना पुत्र किन्नी दुनिया आ गई है। वखरी गल है मैं दसदे कख नहीं, इन्होंने बेचारे हैं मैं इन्होंने फरा फरू के तो मैं अल्लाह सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अमा अलैना इल्लल बलागुल। तशरीफ रखें, दुआ होगी।